Good morning, everyone. I'm delighted to welcome you all to today's webinar on real estate then versus now, a generational lens. This session is designed to take you on a fascinating journey through time, exploring how the property market has evolved across generations and how you can use this knowledge to make smarter real estate decisions today and tomorrow. We are honored to be joined today by three distinguished speakers from DC Jain Real Estate Services, a legacy name built on trust. Sri Dharamchand Jain, founder and director, established his company with a vision inspired by his father and the blessings of his mother. His leadership, rooted in honesty and integrity, has grown the company into a market leader with a 99% client success rate. Sri Nitin Jain, managing director, has carried this legacy forward, fostering powerful relations with developers across Gurgaon and NCR. His commitment to structure and professionalism has elevated the firm into a modern process-driven organization. And we also have Sri Rishabh Jain, business development consultant, who brings fresh energy and cutting-edge innovation as the fourth generation leader. With credentials from NSIT and IIM Udaipur, he's driving expansion into new markets and services, positioning the company for the future. Before we get started, I would also like to introduce our esteemed moderator for today's session, Mr. Manoj Agarwal. He is the Managing Director of Agarwal Estates, and under his leadership, Agarwal Estates has grown to become a trusted name in the real estate industry, known for its commitment to excellence and customer satisfaction. Please join me in giving them all a warm welcome. Thank you, Pooja, for the nice introduction. Thank you, Pooja. Just please feel free to ask questions anytime. Just drop them in the chat or unmute yourself during the Q&A session. We'll wrap the session in about 45 minutes. So without further ado, let's get started. Mr. Manoj, the floor is all yours. Thank you, Pooja. And first of all, thank you, Dharamchand ji. आप आए संडे के दिन, we are blessed actually. And to just give you a quick background how we met, I met Nitin ji in one of the NR event. And then होता ना दो तीन जब बात की होता दिल का कनेक्शन बैठ गया. And then I met his son Rishabh separately with no clue कि दोनों बाप बेटे हैं. And third day I met his grandfather Dharamchand ji, right? ऐसी बातचीत हो रही थी, काफी लंबी बात चली, फिर देखा नितिन जी खड़े हो गए आकर. जब मैं उनको परिचय करवाया तो मालूम पड़ा अच्छा ये पूरा खानदान बैठा हुआ है यहाँ पे. I was like impressed, wow, right? And then next day, me and Pawanji planned to go to their office to meet them and to get their blessings. And then हमको लगा कि नहीं, एक मार्केट में परसेप्शन छाया हुआ है, राइट? कि अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर बिजनेस में है तो उसमें प्रॉब्लम है. एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अग्रवाल एस्टेट्स, विद अ मिशन स्टेटमेंट टू चेंज द परसेप्शंस ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया. बट बाद में रियलाइज किया मैंने कि मेरे से 60-70 साल पहले, राइट, लोग करते आ रहे हैं, है ना? तो ओवर टू धर्मचंद जी, एक सब सीधा सिंपल सवाल पहला आपसे, आप इस बिजनेस में क्यों आए और कैसे आए? देखिएगा, ऐसा है, आपके सवाल का जवाब में मैं क्यों आया और किस लिए आया, क्योंकि मेरे पिताजी, जैसा शायद आपको ज्ञान होगा, लाला राम कृष्ण दास जैन जी डीएलएफ के जनरल ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थे. तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिली थी कि इस काम में बहुत ज्यादा वो है. फिर उनकी सडनली डेथ हो गई जब मैं कोई 15-16 साल का था. मगर हमारी माता जी जो बिल्कुल इलिटरेट थी, उनका एक ही एम था कि मेरे बच्चे पढ़े हैं. तो मैं काफी पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ, फर्स्ट डिवीजन. उसके बाद हमने कहा घर में कुछ तो काम करना है, या तो नौकरी करें 200 रुपए की, 300 रुपए की, या अपना काम करें. अगर हम अपना काम करते हैं और महीने में एक काम भी करते हैं तो हमें 300 रुपए तो मिल ही जाएंगे. तो नौकरी से तो बेटर ही है. तो ये बेसिक सवाल जो आपने किया, उसके पीछे रीजन ये है. और फिर प्रभु का आशीर्वाद रहे, मन साफ रहे, ईमानदारी रहे,
और टुवर्ड्स द क्लाइंट्स फेथफुलनेस रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही लेगेसी लेके हम चल रहे हैं, और मेरा बेटा, ग्राउंडसन, ये सब उसी पर लाइन पर आए हैं। बाकी तो प्रभु का आशीर्वाद है, ये है। आपने बिजनेस कब शुरू किया था? मैंने एक्टिवली 1990 में चालू किया है, बट उससे पहले मैं कुछ इधर उधर अपने काम में लगे रहे। एज ऑन डेट आई एम 83। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे। से आज की तारीख में 12 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब परसेप्शन ये था कुछ भी कर लो, ब्रोकर मत बनो। तो जब आप जी थे इतने पढ़े लिखे थे, राइट, क्या उस समय भी वही परसेप्शन था, या उस समय एज ए एजेंट आपको अच्छी नजर देखा जाता था? उस समय माहौल क्या था? नहीं, एजेंट को लोग थोड़ा सा ये देखते थे, यार ये कुछ नहीं करता है तो दलाली करता है, जिसे वर्ड दलाली। बट अगर आप उसको टेक्निकल नॉलेज के साथ करेंगे तो लोग इसको इज्जत देंगे, और यही कारण है कि हम आगे बढ़ते चले गए हैं प्रभु कृपा से, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जिसको भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या जिसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यू हैव टू बी फेथफुल टू बोथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपका नॉलेज की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो शायद क्या यही वजह थी कि आपने अपने पुत्र नितिन जी को इसी बिजनेस में लेकर आ गए आप, या वो अपने मन से आए? नहीं, अपने मन से नहीं आए, इट्स ए फैमिली बिजनेस। बिकॉज हमने अपने पिताजी को देखा था, जिस हिसाब से जिस समय के कोई टेक्निकल गाइडेंस नहीं होती थी, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। सवेरे 6 बजे अगर घर से चले गए, रात को 3 बजे आ रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी होनी है। उस समय तो पटवारी, गिरदावर, लैंड ओनर्स, इन सब से मिलना, तो वो सब चीजें जो हम उनकी देखते थे, वो ये ज्ञान हमने आगे लेके। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द वर्क। ठीक है, थैंक यू धर्म जी। ओवर टू यू ऋषभ। नितिन जी, हम और आप बीच वाले हैं, ठीक है ना? तो प्रायोरिटी हाँ, हम दोनों को लेस मिलेगी। मैं या घर पे बोलता हूँ हमेशा, मेरा क्या है, मैं तो आंसू पी के जी लूंगा। तो ओवर टू यू ऋषभ। आप इतने पढ़े लिखे हो, आपने इंजीनियरिंग की, फिर आईएम से उदयपुर से आपने एमबीए किया, फिर वर्किंग केपीएमजी, वेरी हाई प्रोफाइल जॉब, राइट? व्हाई डू यू चूज रियल एस्टेट? फैमिली प्रेशर और इट्स योर ओन विल? So Manoj ji, first of all, पढ़े लिखे तो I would say Baba is definitely more educated and qualified than me, and so is Papa. तो रियल एस्टेट हमेशा करना ही था, तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री नीड्स दैट शिफ्ट कि एजुकेशन के बाद लोग प्रोफेशनल वे में इसको आगे बढ़ाएं। तो एंड एज यू आस्क्ड कि मैं फैमिली प्रेशर की वजह से आया या अपनी विल से आया, तो जैसा कि बाबा ने कहा कि पापा फैमिली बिजनेस इसलिए आए थे, सो मेरा थोड़ा उल्टा था। मुझे आना था, वो पापा वाज लाइक कि नहीं, कि 2-3 साल यू शुड वर्क समवेयर। सो व्हेन आई लेफ्ट केपीएमजी आफ्टर 1 ईयर, पापा तो कह रहे थे कि नहीं 1-2 साल और कहीं काम करो एंड देन कम, बट आई वाज लाइक नहीं, आई एम डन, मुझे करना है ज्वाइन, एंड आई थिंक ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई कुड मेक। तो फैमिली प्रेशर आई वुड से नहीं था, मेरी खुद की विल ज्यादा थी, एंड इसलिए आई थिंक आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद व्हाट द डिसीजन आई टुक दैट डे, और विद द वर्क आई एम डूइंग हियर, और ऑब्वियसली बहुत आगे लेके जाना है। तो वो खुद की मर्जी से आया, इसलिए वो इच्छा भी है अंदर से। फैमिली प्रेशर से आता तो शायद 1 साल करके और फिर बोलता नहीं मुझसे नहीं हो रहा, कि मैं अपना कंसल्टिंग में ही ठीक हूँ। तो पूरी अपनी विल थी। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू यू नितिन जी। अब आप सच्ची बताइए, आप कैसा महसूस करते हैं अभी? तो तेरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक तरफ पिताजी है, एक तरफ बेटा है, राइट? आपको लगता है फंस गए बीच में मैं?
So first of all, thank you Manoj ji very much to organize this. और तीनों generations को I think बहुत अच्छा महसूस करते हैं because पापा की guidance है और एक नई energy साथ में काम करती है. और मेरे और पापा के जो भी experiences हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऋषभ को वो cultivate करें ताकि वो सही direction में जाके सही value chain जो है वो लेकर आए real estate के अंदर. हमारी इंडस्ट्री का जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्लाइंट का चैलेंज है जो मुझे लगता है. तो आई पर्सनली फील के वो कमिटमेंट आने के लिए आपको एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना और एक जो लेगेसी होती है वो दोनों का एक लिटिल कॉम्बिनेशन है जो शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए. बिकॉज कोई भी जब बाय करता है तो मैं मेरे जनरल एक अपनी सेल्स टीम को भी मैं एक बोलता हूँ कि एनीबडी हु इज बाइंग अ प्रॉपर्टी इज मॉर्गेजिंग हिज नेक्स्ट 10 years लाइफ विद दैट डिसीजन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन मेकिंग श्योर दैट द डिसीजन गोज राइट. बिकॉज अगर वो ऊपर नीचे हो जाता है डिसीजन तो उस बायर की शायद 10 साल की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है और आगे की उसकी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है. तो आई थिंक वो वैल्यू चेन हमारी जो ऊपर की 2 generations हैं और हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहां से आई हमारे पास और वही हम आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट बाय द टाइम आई रिटायर और आई टेक द बैक सीट ऋषभ शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक द एंटायर कमांड ऑफ द कंपनी इन द राइट डायरेक्शन. नितिन जी, एक और पर्सनल क्वेश्चन. आपने 2 बार कहा कि आप और आपके पिता धर्मचंद जी राइट जो भी कुछ सीखा है वैल्यू वगैरह वो ट्रांसफर कर रहे हैं ऋषभ को. कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि बेटा तो बाप से आगे निकल गया, कुछ तो झटका दिया होगा आपको? कुछ नहीं दिया मनोज जी, बहुत ज्यादा झटके दिए हैं इसने मुझे 1 साल में. तो बहुत सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम लोग ऑफिस में. सबसे पहले तो हमारा सारा ऑफिस को डिजिटाइज कर रहे हैं हम लोग. सो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द एंटायर ऑफिस इनटू पेपरलेस ऑफिस. सो रियल एस्टेट है तो ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ तो आपको जो रिटेन करने हैं वो रिटेन कर रहे हैं. रिकॉर्ड कीपिंग सारा का सारा सिस्टमाइज हम लोग कर रहे हैं. दूसरा झटका इसने मुझे दिया कि द वे यू क्रिएट लीड्स एंड वे यू फॉलो अप ऑन द लीड्स इज नॉट राइट. हम लोगों का क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टर ड्रिवन बिजनेस मॉडल था तो आगे की ग्रोथ का पूरा सीआरएम सिस्टम हमारा और जो हमारा सेल्स सपोर्ट सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऋषभ ने सिंगल हैंडेडली इनकॉर्पोरेट किया है. उसके बाद में एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी जो आनी चाहिए उसको इनकॉर्पोरेट करें. सो वी आर डूइंग 4 प्रोग्राम्स इन द ऑफिस. सो एक तो हम लोग पानी की जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक यूज नहीं करते ऑफिस में. जितना भी हमारा पेपर शेड होता है वो सारा रिसाइकलिंग में जाता है. सो वी डोनेट दैट पेपर. जितना हार्डवेयर हम लोग परचेज करते हैं कोशिश हम करते हैं कि वो रिसाइकल्ड हार्डवेयर हम लोग यूज करें. जो लैपटॉप्स वगैरह हम लोग सेल्स टीम को देते हैं जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें शायद मेरा रोल ज़्यादा था बिकॉज दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड सिटी है. तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कन्वेंस वी आर यूजिंग इन द ऑफिस इंक्लूडिंग ऑल 3 of us इज ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड जितने भी हमारे रनर्स हैं और उनको हैं सो वी इंसेंटिवाइज अवर टीम फाइनेंशियली ऑल्सो and motivate them to convert the IC engine cars to 2-wheelers to electric 2-wheelers and electric cars. तो ये सारी की सारी चीजें आई थिंक वो ऋषभ ड्राइव कर रहा है. सारी की सारी हायरिंग प्रोसेस सारा ऋषभ ड्राइव कर रहा है. तो आप जो कह रहे हैं कुछ झटका दिया वो कुछ नहीं दिया, वो बहुत ज्यादा झटका दिया इसलिए मुझे. वो एक एड आता था ना अमिताभ बच्चन का, जोर का झटका धीरे से लगे. धीरे से लगे. नहीं, हमारे तो जोर का झटका जोर से लगा है. वो क्वेश्चन मेरा धर्म जी से वही पूछने वाला था मैं. जब बच्चे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं राइट, उनका क्या रिएक्शन था? बीइंग ए ओल्ड स्कूल राइट इन अ न्यू स्कूल, ह्यूज जनरेशन गैप both in terms of thought process and technology as well. Now ये बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं. आपको लगता है कि आपके इस ये सुनहरे कदम जो उठा रहे हैं इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं और ये जो मैसेज आम जनता को जा रहा है कि बीइंग ए ब्रोकर राइट हम इतना कुछ कर रहे हैं. एंड आई एम ग्लैड एक्चुअली आपने टॉपिक रेज किया, मुझे नहीं मालूम था एक्चुअल में. हम लोग भी वही करते हैं फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर. फॉर लास्ट 5-6 years वी आर प्लांटिंग ए ट्री. तो देयर इज एनजीओ कॉल्ड ग्रो ट्रीज, हमने उनसे टैप किया हुआ है. तो ये सब प्लस वी गिव जूट बैग्स टू ऑल आवर कस्टमर्स की पेपर प्लास्टिक यूज मत करो मतलब. एंड वी आल्सो पेपरलेस. तो दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली.
So applause to all of you actually. हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे बट इट्स लर्निंग फॉर अस. तो धर्मचंद जी, आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? कभी आपके मन में होता है कि कहाँ फंस गया मैं अभी मैं बाहर हो जाऊं? ये बिल्कुल नहीं, ये तो कभी भी सोचा भी नहीं है और सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिएगा चैलेंजेस हमेशा होते हैं और चैलेंजेस को जितना फेस करोगे आप उतना ही आगे तरक्की करोगे. तो ये सोचना ही हमारा वो होगा कि हम ये सोचे कि हम कहाँ फंस गए. जितनी चैलेंज आएगी आप उतना ही सोना जो है, जब कुंडल बनता है तो वो आग में तपता है और जब ये कुंडल बनता है, तो इसलिए हम भी उसी को लेके चलते हैं. एक जमाना था हम पैदल चलते थे, बस में चले, टू व्हीलर चलाया, साइकिल तो मैंने कभी चलाया नहीं और फिर कार चलाई. अब तो मैं खैर कार चलाता नहीं, अब तो ड्राइवर चलाता है. Any word of wisdom from your side to young generation, people like my age group also, as ये well as सबसे बड़ी research age group के लिए? उस एक तो नॉलेज ऑफ द ट्रेड बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको आप प्रॉपर्टी दिला रहे हैं वो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट अपने लेके घर जाता है वो डॉक्यूमेंट उठा के रख देता है और पता नहीं उसके एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन कब उस डॉक्यूमेंट को देखे है. तो उस डॉक्यूमेंट को देख के ये कहना चाहिए उसे कि यार किसी अच्छे आदमी ने आपके डॉक्यूमेंटेशन कराई है. तो ये मेरा एम है. इसी तरह से जिसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके प्रति उसको जो पैसा ठहरा है उसके घर पहुंचना चाहिए विद नो लायबिलिटी टू हिम. टैक्स कंसल्टेंट है, वो है, सब चीजें उसकी प्रॉपर होनी चाहिए. उसको केवल जहाँ साइन करने वहां साइन करने के लिए आए. ये नॉलेज ऑफ द ट्रेड बहुत जरूरी है. हम लोग दफ्तर चलाते हैं, दफ्तर में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इतना मैनेजमेंट है, वो बहुत जरूरी है. लोग कहते हैं क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, बेवकूफ़ी नहीं करते हम, ये बहुत जरूरी काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं. डॉक्यूमेंटेशन मेरे से ये अगर आज 40 साल पुराना भी किसी के डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगेंगे तो मैं उसके लिए एबल होऊंगा सप्लाई करने के लिए, रिकॉर्ड्स होगा मेरे पास. ये एडवाइस बहुत हेल्पफुल होगी हम जैसे फेलो रियल्टर के लिए, राइट? एक एडवाइस जो आप कोई भी होम बायर को देना चाहेंगे? होम बायर्स को पहले ये देखना है चाहिए कि मेरी जेब में कितना पैसा है और अगर मुझे बैंक लोन लेना है तो कितना मुझे मिल सकता है. फिर अपनी रिक्वायरमेंट लेके चले. ये नहीं है कि दूसरे की चीजों को देख के चले कि किसी ने 4 बेडरूम का घर खरीदना है या 5 का खरीदना है या कोठी खरीदनी है, तो उसको अपनी जेब के अनुसार बाजार में हो जाना चाहिए, क्योंकि एज ए ब्रोकर तो उसको कुछ भी बेच देगा, बाद में परेशानी तो उसी को होगी. तो इसलिए होम बायर्स को बहुत सोच समझ के और सही आदमी के पास जाना चाहिए. अगला उसी लाइन पर, एक गलती जो आपने देखी है बायर हर बार करता है? जी, एक गलती जो मोस्ट ऑफ द होम बायर बार बार करते हैं, मतलब हाँ, वो क्या गलती लगती है आपको कि ऐसा क्यों किया? जब आपके पास आते हैं, राइट, कोई कस्टमर, मेरा ये एक्सपीरियंस खराब रहा बोलकर किसी के साथ में, तो ऐसी क्या गलती है जो अवॉइडेबल है बट बायर बार बार करता है? बायर बार हिज नॉलेज. बायर से कराई जाती है, क्योंकि जो यंग ब्रोकर्स हैं या ना तजर्बेदार हैं वो जल्दबाजी में कहते हैं काम करो, खत्म करो, इनको दे दो. बाद में बायर को समझ आता है कि तो पेपर गलत हो गया है. तो इसलिए बायर को क्या सोचता है कि अगर वकील को उसको 100 रुपया देना है मिसाल के तौर पे, वो कहता है क्यों दूं मैं 100 रुपया. ये नहीं पता कि वो 100 रुपए से उसको एडवांटेज मिलेगी. तो बायर वहां गलती कर जाता है.
मैं मनोज जी तो से आप थोड़ा सा मनोज जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए बायर को 3 चीजें समझनी पड़ेगी, जो एक पीस ऑफ एडवाइस मेरे एक्सपीरियंस से है, जो आई थिंक पापा भी कह रहे हैं, उसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में वो जो भी तहसील में जाता है या कलेक्टर के पास जा भी जाता है, उसमें जो भी डीड राइटर या लॉयर इन्वॉल्व होता है वो लॉयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो उसका ब्रोकर है, सो दैट एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड बननी है, टाइटल वेरिफिकेशन है, जरूरी नहीं है हर चीज में वेरिफिकेशन, आपका लो बैंक लोन है उसमें एक प्रोफेशनल को एंगेज करे। मान लीजिए 1 करोड़ की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो 10-20 हजार रुपए की कैलकुलेशन नहीं कर, पेनी वाइज वाइज और पॉन्ड वाइज तो वाइज हो गया, पेनी वाइज फुलिश होके एग्री। वो पैसे खराब करता है अपने। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो उसका सर्चिंग प्रोसेस है टू अराइव, देखिए क्या होता है कि रियल एस्टेट का भी जो बिजनेस है, मे बी उसकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, बट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गोज बिहाइंड गिविंग द राइट एडवाइस टू द बायर। तो वो गूगल से या डिजिटल मीडिया से या न्यूज़पेपर से वो सेल्समैन को तो कनेक्ट कर सकता है, वो आपके कंसल्टेंट को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो द बायर हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो उसको राइट एडवाइजरी दे। तो आई थिंक वो गलती वो बार बार करता है कि वो सेल्स के, एक अच्छा सेल्समैन है या अच्छा ऑडिटर है उसके पास चला जाता है, उसको गाइडेंस सही लेने के लिए जाना चाहिए। आजकल जैसे बुकिंग के बिजनेस में डिस्काउंट हो गया जी शुरू, आप कितना डिस्काउंट देते हैं या कितना रिबेट देते हैं, तो मैं कई बार बायर को बोलता हूँ कि जी आप प्रॉपर्टी खरीदने आए या रिबेट खरीदने आए ये बताइए। रिबेट खरीदने आइए तो डिस्कशन नहीं है, फिर तो आप प्रॉपर्टी बताइए और रिबेट पूछिए, अगर हमारे को पढ़ते में आएगा हम दे देंगे आपको। देन यू कैनॉट कम बैक टू मी एंड से कि जी जैन साहब आपने मुझे गलत चीज दिला दी, बिकॉज आपने मेरे से प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं, आप तो डिस्काउंट खरीद के लेकर गए हैं मेरे से। इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी तो एक प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको देखिए अगर मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा, हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, टिपिकली उसका जो डिलीवरी टाइम है वो 3 साल से 5 साल का डिलीवरी टाइम है। हम लोगों के पास, बायर के पास रिकॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे को उस ड्यूरेशन में उसकी कब पेमेंट हुई, कब डिले हुई, क्या हुई, हम लोग उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो डेवलपर से कोई भी हमारे को इंटरेस्ट सेटलमेंट करना है या कोई भी चीज करनी है, उसका टैक्स के कंप्लायंस के हिसाब से, टीडीएस कंप्लायंस के हिसाब से, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि वो बायर गया, उसने बुकिंग कराई, उसके बाद डेवलपर के पास वो गया और ब्रोकर आउट हो जाता है। वो राइट अप्रोच नहीं होती, बिकॉज टाइम टू टाइम आपको एक एडवाइजरी बायर को देना होता है कि मान लीजिए कि मार्केट हमें थोड़ा सा मंदा नजर आ रहा है, तो जो इन्वेस्टर बायर है उसको हम एडवाइस देंगे कि आप निकल जाइए इससे, या कई बार लॉस भी बुक करना पड़ता है। समटाइम्स 100 रुपए की चीज ली, आप 90 में निकल गए, पता चला 70 की हो गई। ये तो मार्केट डायनेमिक्स है, स्टॉक मार्केट की तरह है। दूसरी चीज, बायर जो एक गलती और करता है, वो पैनिक में बहुत हाई प्राइस पे ले लेता है, और पैनिक में बहुत, जब मार्केट जस्ट करेक्शन मोड से बाहर निकल के वापस बढ़ने वाली होती है, तो दोनों टाइमिंग वो गलत करता है, खरीदता भी गलत टाइम पे और बेचता भी गलत टाइम पे है। तो मेरी एक एडवाइस उसमें बायर को ये रहती है कि एक गलती करो, दोनों मत करो। अगर गलत टाइम पे खरीद लिया है तो बेचो मत गलत टाइम पे, पेशेंस रखिए। और अगर गलत टाइम पे आपने बेच दिया है तो सही टाइम पे खरीदो, फिर वेट पेशेंटली। तो गुड दोनों गुड गलती पॉइंट। अगर करोगे तो गड़बड़ होगी, गलती एक ही करनी है। ऋषभ, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, जस्ट वन पॉइंट। तो मनोज जी, आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्योंकि पापा और बाबा से लर्निंग मुझे रोज ही मिलती है, तो आज थोड़ी आपसे भी ले लें। आप भी अगर सेम फील्ड में है, क्योंकि तो आप भी अगर बता सकते हैं कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी और आप क्या, आपके हिसाब से क्या है, व्हाट्स वन मिस्टेक दैट। I agree that one, the buyer should decide between a salesperson and a consultant. Second, your own funding, right? कि कितना है, जितने का बजट है उसका एडिशनल आपको 20% खर्चा और लग जाता है। 10% on the government expenses, 10% on the interior, which they initially don't budget because of lack of knowledge, right? Third biggest thing which I see among most of the home buyers, there is a saying called buying is a emotional decision, right? So 99% of the home buyer will buy the house on the aesthetic appeal. घर का अगर कलर अच्छा है, लुक अच्छा है, राइट, वो अच्छा तो लोग खरीद लेते हैं। I always tell the buyer कि buy the house based on the floor plan, because the color of the screen, interior, you can change at a very much lower cost.
Floor plan will decide the sun energy, the ventilation, the view, the direction, right? Which you can never ever change. तो ये हम हर बार को बोलते हैं कि फ्लोर प्लान पे जाओ, राइट? सनलाइट पे जाओ, वास्तु पे जाओ थोड़ा बहुत. And why vastu? Not because of religious or spiritual reason, because vastu is very scientific actually, man. According to the rotation of the sun, right? कब घर पे लाइट आनी चाहिए, कब हवा आनी चाहिए, कब चांद आना चाहिए, कब आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, राइट? उन सब जो साइंटिफिक फैक्टर को देखते हुए देन टेक ए बाइंग डिसीजन. फिर एक और चीज जो देखी है मैंने, पीपल वुड अप्लाई वास्तु नॉलेज ब्लाइंडली कि डोर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए. द रीजन डोर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए कि सुबह की धूप आपके घर पर आए. पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सामने एक वॉल पड़ी है आपके घर के, धूप नहीं आ रही, फिर भी लोग चूंकि डोर ईस्ट फेसिंग है तो लोग ले लेते हैं. तो बोलते हैं एक तो नॉलेज और एक अप्लाइड नॉलेज, विजडम इज मिसिंग. सो एज ए कंसल्टेंट वी कैन डू दैट जॉब. एज ए सेल्स पर्सन वी कैन सेल दैट प्रॉपर्टी इजीली कि देखो ईस्ट फेसिंग है, राइट, वास्तु कंप्लाइंट है. एज ए कंसल्टेंट हमारा रोल फिर ये बन जाता है कि वास्तु कंप्लाइंट तो है, राइट, बट पर्पज जो था आपका वो स्वरूप आपका नहीं हो रहा है. सो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, वी कॉल इट की सीरीज, KEY, नॉलेज एम्पावर्स यू, राइट. तो हमारा टेक लाइन वही होता है कि हेल्प्स यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. हमने बता दिया, अब आगे देख लो बोलकर. बट लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको भी अपना एक पॉइंट बताना पड़ेगा. being young, so we can learn from you basically. तो आई फील लाइक मनोज जी कि अभी जो एक ड्रास्टिक शिफ्ट जो मैं बोलूंगा मेरी जनरेशन में और पापा की जनरेशन में और बाबा की जनरेशन में है कि पहले बहुत डीप डाउन नॉलेज होती थी सबको, एक बायर को भी, एक सेलर को भी, एक ब्रोकर को भी. एज बाबा मेंशन, वो पेपर वर्क की, लीगैलिटीज की. मेरी जनरेशन में हम उतनी डीप डाउन नॉलेज या तो रखना नहीं चाहते, हमारे पास उतना पेशेंस नहीं है. एंड एवरीथिंग इज ऑन द टिप ऑफ आवर फिंगर टिप्स आजकल, कि हम गूगल कर लेंगे, हमें क्यों जानना है. तो वो डीप डाउन नॉलेज आई थिंक एक मिसिंग है आजकल. और जो जैसा कि आपने कहा, वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होता घर लेने के टाइम पे. इट्स मोर ऑफ अ क्विक डिसीजन कि सब ले रहे हैं और इतना मार्केट में सप्लाई है तो हम भी ले लेते हैं. तो वो ये नहीं होता, जैसा कि आपने कहा, फ्लोर प्लान नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकलिटी नहीं देखेंगे कि वहां रहना है उन्हें. तो आई फील लाइक दैट्स मिसिंग आजकल के बायर्स में, स्पेशली इन माय जनरेशन. एंड उनका प्रॉपर लीगैलिटीज की क्या पेपर हो, क्या फॉर्मेलिटीज होती है. इवन दो इन्फॉर्मेशन बहुत वाइडली और इजीली अवेलेबल है सब बायर्स को, और वो अपना पूरा रिसर्च भी करते हैं, एक्स्ट्रा रिसर्च ही करते हैं वुड से आजकल. मतलब एक अच्छे कंसल्टेंट के पास आके उसकी भी सुनेंगे, लेकिन फिर अपनी पूरी रिसर्च भी करेंगे. एंड देन दे विल क्वेश्चन व्हाट वी आर टेलिंग देम. तो वो एज अ प्रोफेशनल कहीं ना कहीं आपको बिलीव भी नहीं करते, और करते हैं तो इतना डीप डाउन खुद भी नहीं घुसना चाहते कि वो एक्चुअली अगर हमें या तो गलत प्रूफ कर पाए या फिर बोल पाए कि नहीं दिस इज व्हाट आई फील. तो आई फील लाइक वो इन्फॉर्म डिसीजन, जैसा कि आपने कहा, वो सबसे बड़ी चीज है जो मिसिंग है. फेयर पॉइंट. एक और चीज उसी टॉपिक पर एक्चुअली में, मैजिक ब्रिक्स का भी कुछ दिनों पहले ऐड आया था, महीनों पहले, राइट, अबाउट डिफेमिंग द ब्रोकर. So as a broker, and there's also no brokerage also there, right? How do you feel about it? सिंपल आई थिंक एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आई फील लाइक मतलब वो कहीं ना कुछ तो ऐसे हमेशा ही आता है. मतलब पहले भी बाबा मेंशन कि वो एक दलाली की तरह देखते थे कि दलाल है, कि ये तो ब्रोकर है, क्या कर रहा है. वो रिस्पेक्ट नहीं आया. वर्ड फ्रॉम पापा ऑल्सो पहले होता था कि अगर शादी के लिए, रिश्ते के लिए जा रहे हैं और पता लगता था कि ब्रोकर है, तो वो भी छुपाते थे कहीं ना कहीं कि हमारा बेटा ब्रोकर है. वो बोलने में लोग को शर्म आती थी. सो आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं तो हमेशा रहा ही है. मैजिक ब्रिक्स का जैसे कि आपने कहा कि वो एड चलाया, तो उनका जो मेन कस्टमर है, जो उनका मार्केट प्लेस है, जो ड्राइव कर रहे हैं लोग, उनको ही वो कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो ठीक है, मतलब आई थिंक they did more harm to themselves than to brokers or us or other professionals in this industry. तो मेरा भी वही मानना है. अच्छा हुआ जो बदनाम हो गए, उसी बहाने नाम तो हो गया.
करेक्ट। और एक और मेरी टीम ने भी क्वेश्चन पूछा था, तो वही कहा था मैंने उनको कि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो कि हम लोग सेल्फ क्रिटिकल कभी नहीं होते हैं, राइट। बट अगर मैजिक ब्रेक्स वो कर रहा है हम लोगों को, इट्स फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्सो टू लुक बैक, Reflect. right? Correct. Why this perception is being created by them, right? And how much truth to it. तो मुझे लगता है it's good for us actually. मैं मनोज जी हमारे लिए भी अच्छा है, उसमें हमारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो we can look ourselves कि what we can do to improve. At the same times we get much needed visibility without spending our dollars. Go ahead नितिन जी। मेरे 2 पॉइंट्स इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। तो पहले जो ब्रोकर की परसेप्शन थी, कल कपिल शर्मा का शो में देख रहा था तो नीना गुप्ता जी आई हुई थी। तो नीना गुप्ता जी बोली कि मैं करोल बाग में जब मैं जाती थी वापस घर पे, तो वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे कि मेरा बेटा निकम्मा नालायक है, आवारा है, कुछ नहीं करता, तो इसको एक्टर बना दो। तो आई थिंक वो ब्रोकर की भी जो आज से 30-40 साल पहले परसेप्शन थी कि कुछ नहीं कर रहा तो चलो ब्रोकरेज ही कर लेते हैं। With Papa's education background, with my education background, with Rishabh's education, with everything, I think वो परसेप्शन तो टूट गया। जो जिस क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं, जिस नॉलेज बेस से बच्चे आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं नई जनरेशन में, आई थिंक वो परसेप्शन तो टोटली चेंज हो गया। The other important thing is कि it is buying medicine from ऑनलाइन पोर्टल। आपने अपना डिजीज के बारे में लिखा और आपको दवाई गूगल ने बता दी और आपने वो केमिस्ट से जाके दवाई ले ली। सो कोई भी ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे एक AI बेस्ड आपको साइट सजेशन या गाइडेंस मिल रहा है, तो दवाई अगर आप खरीद सकते हैं जाके ऑनलाइन से, तो फिर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, जिसको समझ है और जो अपनी जिंदगी की परवाह करता है वो डॉक्टर के पास जाएगा, जो अपने पैसे की और अपने डिसीजन को सही डायरेक्शन देना चाहता है वो एक कंसल्टेंट के पास जाएगा। तो सेल्समैन के पास जाना है तो आप चाहे वो ऑनलाइन से खरीदिए चाहे सेल्समैन के पास जाइए, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क है उसमें। बट अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आपको एक एक्सपीरियंस चैनल पार्टनर ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। तो मेरा समय के साथ अपने आप ही चीज ठीक होगी थी। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपको उसके ऊपर में, मी एज ए होम बायर, हाउ वुड आई नो नाउ, राइट, कि कौन सेल्स पर्सन है, कौन कंसल्टेंट है? तो डू यू थिंक इट्स अ डिफिकल्ट जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ द होम बायर, राइट? I don't think so. I don't think so. मेरा आज भी 70% जो बिजनेस है मनोज जी, वो रेफरल बेस्ड बिजनेस है हमारा। आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, आप अच्छे सेटिस्फाइड हुए, आपने अपने दोस्त को, कोलीग को, भाई को, ब्रदर, इन लॉज को आपने सजेस्ट किया जी वहां जाइए। पहले 90% होता था इस तरह का बिजनेस। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका 80% आज भी डिजिटल बेस्ड बिजनेस है। वहां पे इट इज लाइक फार्मिंग एंड इट इज लाइक हंटिंग। सो ब्रोकर जो हंटिंग कर रहा है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो फार्मिंग कर रहा है रिलेशनशिप को वैल्यू करता है। तो बायर के लिए मुझे लगता है कि ये पीस ऑफ एडवाइस है कि वो कहीं रेफरेंस चेक करे, पर्सनल रिलेशनशिप जिसमें रहे, डिस्काउंट ना बाय करे, 1% 2% मैटर नहीं करता। 100 रुपए की सेफ्टी, सही डेवलपर के पास जाना, सही चीजें करना। पॉन्जी स्कीम चल रही है, शोर रेंटल दे देंगे जी 10% पे, बुकिंग करा लीजिए 90%। पैसा आपने अपनी जेब से जाना है। बायर ये रियलाइज नहीं करता उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी फालतू दे रहा है, GST भी फालतू दे रहा है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। तो स्पेकुलेटिव नहीं करे, रियल एस्टेट की तरह बाय करे। रियल एस्टेट में रिटर्न चाहिए तो आपको 5-10 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरनाइट रिटर्न नहीं मिलती रियल एस्टेट में। बाकी तो ठीक है, फिर तो कैसीनो भी जा सकते हैं, तो रात को पैसे डबल करके आ सकते हैं या खो के आ जाएंगे, वो तो ठीक है। नहीं, मैं उसी सवाल पे फिर आऊंगा एक्चुअली में, कि आपने बोला कि 70% आपका बिजनेस रेफरल है, राइट? जी। एंड आई एम अज्यूमिंग यू आर कैप्चरिंग 0.01% ऑफ द गुड़गांव NCR मार्केट, करेक्ट? व्हाट अबाउट अदर्स? देखो मेरे पास जब लोग आते हैं, बोलते ना प्यार या मोहब्बत में दिल जब टूट जाते हैं, ऐसी लोग तुम्हारे पास चले आते हैं, राइट? हमारे पास जब लोग आते हैं पहले से कोई ठग चुका होता है उनको, तो मोस्ट ऑफ द जनता को कैसे मालूम पड़े एक्चुअली में? अगर आप देखोगे, राइट, जैसे बाबा जी धर्मचंद जी ने बोला, राइट, कि 95% ब्रोकर के साथ उनका पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा। अगर उतना हाई है तो जो आम बायर उसको मालूम कैसे पड़े? ये चैलेंज मैं भी फेस करता हूँ एक्चुअल में, हाउ टू रीच आउट टू द कस्टमर्स, करेक्ट, जिनको पता चले दैट नाउ यू हैव गॉट अ चॉइस, राइट? इट्स लाइक वोट फॉर हुम। सबको लगता है सब तो एक जैसे ही हैं बोलकर।
मैं उसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जी। सपोज करिए कि ऋषभ बैंगलोर शिफ्ट कर जाएगा, सपोज एज्यूम करते हैं नौकरी कर रहा होता और वो आईटी में कहीं बैंगलोर चला जाता। दिल्ली में मेरा 500 लोगों का सर्कल है, बैंगलोर में शायद मैं 4 या 6 जनों को जानता हूँ। उनके कोई ना कोई क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, उनके रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस होता है। उसको जरूर चेक करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो आपकी सिस्टम के अंदर वो चीज सूट करती है। आपकी जिस लोकेशन पे आपको चाहिए वहां पे कोई एक्टिव ब्रोकर, आप गूगल रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, जितना मर्जी फर्च कर लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे सही रेटिंग में आप रीड बिटवीन द लाइन आराम से कर सकते हैं उस चीज को। आधे घंटे 1 घंटे मिलके आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सेल्समैन है या वो जेन्युइनली नॉलेज है उसके पास। तो वो बेसिक जी। मैं दूसरी चीज, हमारे जैसे फर्म से डील करने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम प्राइमरीली ओनर ड्रिवन एंटरप्राइजेस है। तो क्लाइंट से हमारा पर्सनल इंटरेक्शन, हमारी पर्सनल गुडविल स्टेक पे होती है अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे। जहाँ पे टोटल एम्प्लॉय ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो मैनेजमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक चैनल ऐसा जरूर लेना चाहिए जिसमें मैनेजमेंट का एक्सेस जरूर हो। अब ट्रांजेक्शन में हम, चाहे हम इवन एक लीजिंग कर रहे हैं, हम उस लीजिंग में भी कोशिश ये जरूर करते हैं कि एक बार हम टेनेंट और लैंडलॉर्ड से एक बार मीटिंग जरूर करें। हमारे नंबर शेयर होते हैं उसमें, जैसे अगर सपोज हमारी एक मीटिंग नहीं भी हुई उससे, तो जब उसको वेलकम ईमेल जाता है तो मेरा नंबर उसके पास जाता है। अगर मेरी टीम नीचे ठीक परफॉर्म नहीं कर रही तो वो ऑफिस में से मेल जाएगा ही जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम, सही पॉइंट बताया आपने। मतलब कि अगर क्लाइंट के पास में आपका नंबर जा रहा है मैनेजमेंट टीम का, राइट, सो दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर कि नहीं, मतलब धांधलीबाजी नहीं हो रही यहाँ पर, वी कैन रीच आउट टू द टॉप बॉस बेसिकली। दैट हेल्प्स। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसका मोबाइल नंबर कितना पुराना है। अब मेरा तो 95 से नंबर आज तक यही है, तो अगर 30 साल से सेम नंबर रखा हुआ है तो कुछ तो ठीक किया होगा हमने। गुड वन। तो अगर हर 5 साल में ब्रोकर नंबर बदल रहा है, 2 साल में ब्रोकर नंबर बदल रहा है अपना, तो वो कुछ तो गलत कर रहा होगा तो वो नंबर बदल रहा है अपना। तो छोटे छोटे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो मुझे लगता है कि बायर, एक जनरल कॉमन सेंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कोई। बाकी तो जहां दिल मिले, जहां मन मिले, जहां चीज ठीक लगे करना चाहिए। मैं कितनी दफे मनोज जी, मैं एक चीज और लास्ट में ऐड करूंगा, मैं कितनी दफे बायर को मना कर देता हूं कि आप अभी प्रॉपर्टी मत करिए, वेट फॉर अनदर ईयर। तो बायर भी कहते हैं जी ऐसा सेल्समैन तो हमने देखा नहीं। हमने कहा जी हम सेल्समैन है नहीं ना जी, हमारी प्रॉब्लम ही यही है। हमारी प्रॉब्लम भी और सॉल्यूशन भी वही है हमारा। तो एक और चैलेंज जो मुझे आता है बैंगलोर में, एंड दिस इज गुड फॉर द पीपल लुकिंग फॉर हाउस आल्सो, राइट, कि वी सोल्ड ए प्रॉपर्टी एट 1.2 CR and some other agent came to know about this. That deal is closed at 1.2 CR. At that night itself, the other agent called the home buyer. Similar house is available at 1.1 CR. नेक्स्ट डे बायर का फोन आ गया कि डील कैंसिल कर दीजिए, राइट, क्योंकि मुझे 1.1 का सेम घर मिल रहा है उसमें, करेक्ट। तो पहले मैं इन सब चीजों से अनभिज्ञ था खुद, मुझे लगा एक्चुअली मिलता होगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, सम ऑफ द डर्टी ट्रिक्स इन द मार्केट बाय सम ऑफ द कल्प्रिट बेसिकली, राइट। सो फिर मुझे डाउट हुआ कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं, मैं, राइट, मैं यहाँ पे रहता हूं, मैं, इट्स इम्पॉसिबल, करेक्ट। तो मैंने उस होम बायर को बोला, मैं काम करो, 1.12 का ऑफर मेरी तरफ से, उस एजेंट को बोलो अभी क्लोज करते हैं और मुझे घर भी नहीं देखना, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम मैं देता हूँ अपनी पॉकेट से। सो व्हेन आई मेड दिस स्टेटमेंट टू दैट होम बायर, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बट डाउट तो आ गया ना, मैं कितना ही कुछ बोलूं चाहे, राइट, एक तो ब्रोकर का परसेप्शन गलत है, भले मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, राइट, डाउट आ गया उसके मन में। सो नेक्स्ट डे वी मेड दैट ब्रोकर 1.1 मांग रहे, 1.12 देने को तैयार, आज ही क्लोज करते हैं बोलकर, फिर वो गोल गोल बातें करने लग गया, राइट। एक और चीज देखिए मैंने, जो मैंने फेस किया यहाँ पर बैंगलोर मार्केट में, कि मान लीजिए प्रॉपर्टी प्राइस 1.2 CR है, मार्केट रेट से बिकती है डील, मैं हम बायर सेल को बोलता हूँ कि रेट हमेशा, डील हमेशा मार्केट रेट पर ही होती है। तो मैंने बात की ओनर से कि ठीक है 1.2 में क्लोज करवा दी, बात हो गई। शाम को फोन आया, जी नहीं आप तो अपनी ब्रोच के चक्कर में हमारा घर सस्ते में बिकवा रहे हो। उसको मैं क्या बोलूं, आपको क्या खबर मिली, तो बोला 1.4 CR मार्केट रेट है। तो शुरू में तो मैं बोलता ठीक है भैया चाबी ले जाओ अपनी, क्या करूं मैं, राइट।
तो बाद में क्या होता, उसका 6 महीने घर नहीं बिका, मेरा भी लॉस हुआ, सेलर का भी लॉस हुआ, बीच में जो थर्ड बंदा जिसने चीट किया उसका फायदा हो गया या समय लॉस हुआ। अब हम ये बोलते हैं सेलर को, एक काम कीजिए, जिस ब्रोकर ने आपको बोला 1.4 शेयर का मार्केट रेट है, राइट, आप किसी और नंबर से उसी ब्रोकर को फोन कीजिए, बोलिए कि मुझे घर खरीदना है उस सोसाइटी में, कितने में दिलवा दोगे? अगर वो बोले 1.2 में दिलवा देता हूं मैं आपको, तो आप समझ जाना। करेक्ट? तो इस टाइप के गेम्स काफी होते हैं, मतलब तो सिमिलर ऐसा कुछ चैलेंज आया जिससे आपको लगता है वी शुड इन्फॉर्म मैं इसका ना प्रोस्पेक्टिव बायर और सेलर की, ताकि वो ना फंसे। मैं आपको इसका दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ जी। हम कोई प्राइस कोट करते हैं किसी चीज का रीसेल मार्केट में, बायर आता है, बैठा होता है, वो 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स बोलता है हमारे सामने बैठे बैठे, और वो कहता है जी इस पे तो लिस्टिंग डली हुई है, हमने 1.2 की, मैं आपकी बात को ही पकड़ लेता हूँ कि 1.2 में आप हमें कोट कर रहे हैं, इस पे तो 110 की लिस्टिंग डली हुई है। तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि जी वो तो फिर 99 एकड़ से ही खरीदना पड़ेगा, कोई ब्रोकर तो दिला नहीं पाएगा आपको। तो वो जो ऑनलाइन में हमारे भी कई बार हम लोग 5 लाख रुपए कम पे लिस्टिंग डालते हैं, तो बोलते हैं जी आप क्यों डालते हो लिस्टिंग? हमने कहा जी वो बायर को बुलाने के लिए डालते हैं और 5 लाख रुपए ऊपर सेलर को बुलाने के लिए डालते हैं। प्राइस तो 120 है उसका, तो 1 लाख ऊपर नीचे लोकेशन और डील के डील चेंज हो जाए वो अलग मैटर है, बट प्रॉपर्टी तो मिलेगी उसी प्राइस पे जो बाजार का एक्सेप्टेबल प्राइस है, और एक्सेप्टेबल प्राइस वही है जिसपे बायर और सेलर दोनों राजी हो। तेजी की मार्केट में थोड़ा ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वो बढ़ता जाता है, मंदी की मार्केट में वो ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन प्राइस कम होता जाता है, इवेंचुअली होगा मार्केट रेट पे। फिर आपकी नीड क्या है? मेरी नीड है मुझे अभी 15 दिन में पेमेंट चाहिए, मेरी नीड है कि मुझे एक एक्स प्राइस अचीव करना है। तो दोनों में एक बायर कहता है जी कि मेरे को सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए तो उसको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अंदर अपार्टमेंट में कोई हो सकता है टाइटल डेफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें होती है जिसको उसको, मतलब कई बार डील सस्ती मिलती है, उसके पेपर्स नहीं है, कोई चेन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली में इंटरनल डिस्प्यूट है, बहुत सारे केसेस होते हैं इस तरह के जिसमें चीज सस्ती कोट हो जाती है और अवेलेबल भी है, बट विदाउट बैकग्राउंड चेक हम उस प्राइस को बेंचमार्क नहीं बना सकते टू मेक अ डिसीजन। तो इवेंचुअली उसको डीप डाउन डिग करना पड़ता है चीज को। पहले आइडेंटिफिकेशन करिए ब्रोकर की, लोकेशन की, प्रॉपर्टी की, उसके बाद उसके अंदर आप अपना डिसीजन करिए। अदरवाइज तो पूरा गुड़गांव बिक रहा है और पूरा बेंगलोर बिक रहा है, तो एवरीथिंग इज एंड एनीथिंग इज फॉर सेल, तो कितना ढूंढेंगे और कितना भागेंगे। पॉइंट नोटेड। अब एक काम करते हैं, एक बार किसी को कुछ पूछना है, एनीबॉडी वांट टू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क अबाउट बैंगलोर मार्केट और दिल्ली एनसीआर मार्केट और इन जनरल एनी जेनरिक क्वेश्चन। एनीबॉडी? एक सवाल है जो आपके रोज कॉल सेंटर से जो कॉल्स आती हैं, हम मतलब जैसे मैं भी इंक्लूड हो सकता हूँ, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने जो कॉल सेंटर्स अपने खोले हुए हैं और उसको कॉल करते हैं, 99% कॉल सेंटर्स पे जो लोग कॉल कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है, पूरा पता ही नहीं है कि क्या चीज बोलनी है। बस कि जी फलानी प्रॉपर्टी है, वो हमारी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत लग्जरी है, तो वो लैक ऑफ नॉलेज है आज के रोज। उसके लिए हमें एज ए रियल एस्टेट मार्केट में, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, ये नहीं हो कि वो कॉल सेंटर की कॉल आई, मैंने सुनी, बंद कर दी क्योंकि वो बेकार कॉल है। तो उसका हमारे पास क्या इलाज है? इसका तो मैंने जो देखा अब तक, टिपिकली दोज कॉल्स आर स्क्रिप्टेड, जिसको पता है 4 लाइन याद करके बोलनी होती है। एब्सोल्युटली, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बट पीपल फॉल फॉर इट। जिनको लेना होता है तो हम लोग प्रोएक्टिवली कॉल नहीं करते किसी कस्टमर को एक्चुअली में, बिकॉज हाँ, मुझे लगता है कि इफ आई लुक एट द आरओआई नहीं आता उसमें, बट लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी और मैं इसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग उस चीज को अवॉइड करते हैं। वी रिलाई मोर ऑन द रेफरेंस बेस्ड मार्केट, बट उसका कुछ उपाय नहीं है, मतलब कोई नहीं है ना सोल्यूशन। फिलहाल तो मुझे मे बी रिसर्च कैन कम आउट इन द फ्यूचर एआई बेस्ड। एक ही सॉल्यूशन है जी, जिसका नंबर है उसका नंबर आप ब्लॉक कर दीजिए, पीस ऑफ माइंड लीजिए, बाकी कोई कुछ और सॉल्यूशन है जी। सो थैंक यू हाँ, वेरी गो मच। अहेड पंकज जी।
You are on mute. Yeah, sorry. Namaste, Jain Saab, Nitin ji and Rishabh ji. So I was fortunate enough to meet this three generation together during NAR visit. So I have, before I ask my question, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा धर्मचंद जी को कि उस जमाने आज के ज़माने में तो बहुत काफ़ी लोग आपको मिल जाएँगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मैं वो समय देखा है जब दलाल कहा जाता था और एक बहुत नीची नज़र से देखा जाता था। तो उस ज़माने में आपने एक फार साइटेडनेस दिखा के और ईमानदारी से काम करने का सोचा और आपकी जनरेशन आपके साथ है, वो नींव जो आपने डाली है वो आज एक बड़ा भरा पूरा वृक्ष बन गई है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे लिए भी एक वो मोटिवेशन है। और उसके साथ में मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लाइट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, काफ़ी हेवी ड्यूटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आप तीनों से है धर्म जी और नितिन जी और ऋषभ जी कि अगर आप लोग रियल एस्टेट में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? क्या प्रोफेशन होता आपका? देखिएगा पढ़े लिखे तो हम हैं ही, जी। तो कहीं ना कहीं मैं इसका नौकरी तो मिल ही जाती। जी, प्रोफेशन जो मन से आपका है कि मैं ये काम कर रहा होता, नेक्स्ट बेस्ट मेरा ये है। मगर क्या है कि माफ करना, मैं थोड़ा सा रिलीजन बोल रहा हूँ। एज ए जैन जी, बिजनेस फैमिली होती है, तो जी। वो अगर रियल एस्टेट नहीं करती तो कुछ और धंधा करते हैं, बिज़नेस बट नौकरी नहीं अच्छा, करते। नौकरी नहीं करते। इसके जी। लिए पवन जी क्या होता है कि तो नौकरी में तो गिने हुए मिलेंगे ना। हमारे ज़माने में कहा था नौकरी के 9 काम, 10वां काम हाजी। ऐसा है पवन जी कि मैं कुछ और इससे ज़्यादा थोड़ी-सी मैं और एक इंटेलेक्चुअल हैवी थोड़ी बात कर देते हैं इस बारे में। जॉब में जी, आप अपने लिए कर रहे हैं, जब आप व्यापार कर रहे हैं, तो आप समाज के लिए भी कर रहे हैं, तो यू आर आल्सो क्रिएटिंग ब्रेड फॉर सो मेनी पीपल। आई थिंक दैट करेक्ट। सोशल रिस्पांसिबिलिटी शुड बी देयर। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि हम जो अब काम कर रहे हैं, हम अपने लिए शायद नहीं कर रहे। जी, अ जो हमारी टीम है, जो व्हाटएवर वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। सो गॉड हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ टू do the right things for the society, and probably we are जी, doing that now. वेजिटेरियन खाना खाना घर अपना है तो कोई बहुत ज्यादा पैसे तो आपको चाहिए नहीं, एंडलेस है वो तो। एंड आई थिंक पोस्ट कोविड पीपल, लॉट ऑफ पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, दैट जी, मनी बियॉन्ड अ पॉइंट हैज नो रेलेवेंस। जी, जी, मोर पावर टू यू। और एक जीवन का और आपको एक बताता हूँ, अगर एक जीवन में एक ही नियम ले लीजिए कि मुझे चोरी नहीं करनी है, जी, केवल एक नियम, तो आपको जीवन भर कोई भी परेशानी कभी पैदा नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात। उसका रीजन है, अगर मैंने ये ले लिया कि मुझे चोरी करनी ही नहीं है, तो ना व्यापार में कोई हेरा फेरी करेंगे ना कुछ करेंगे, तो आपके पास कस्टमर अपने आप आएगा, उसको पता है कि भाई ये सही काम करेगा, जी, तो आपको प्रभु भी आपके साथ रहेगा। गुड पॉइंट। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार ऋष पवन जी, थैंक यू। नमस्ते। तो आपने लाइट सवाल किया, मैं लाइट जवाब देना चाहूंगा एक। हाँ, आपने पूछा कि अगर मैं इसमें नहीं होता रियल एस्टेट में तो क्या कर रहा होता, तो अभी रिसेंटली मैं अपनी स्टडी क्लीन कर रहा था, तो एक पुरानी मुझे अपनी शायद 5th क्लास की नोटबुक मिली, तो उसमें पूछा गया था कि क्या काम करना चाहोगे अब, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो उसमें मैंने आंसर लिखा हुआ है कि आई वांट टू बी अ कार ओनर डीलरशिप, डीलरशिप। कार डीलरशिप ओनर। तो ओके, आई थिंक सिमिलर लाइन में यूं मैं बोलूंगा। वंडरफुल, थैंक यू। दैट रिमाइंड्स मी, मेरे ब्रदर इन लॉ से पूछा गया था बचपन में क्या बनोगे, तो उसने कहा मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। उसको ड्राइविंग का शौक था, बचपन में ट्रक से खेलता था और घूमना अच्छा लगता था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इनसाइट्स एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Over to Miss Sana Miss Vijayalakshmi. Sana. Please ask your question. Yep. Hi. My name is Kishore. I have joined from my Gmail. I don't know like how it is showing my wife's name here. Yeah. Women Maybe rules. like
Yeah, that's okay. It is her laptop. Maybe that could be the reason behind it. It was so nice to understand how the business is transforming from generations together. I can see like live example here, starting from Dharamji to Nitinji, from there to Rishabh. I was really proud to know how this business is happening all these years. It's not years, I can say like 3 generations. I wish it has to go further as well. I just want to understand one thing, okay? I'm an IT consultant working from past 15 plus years in IT, based out of Bangalore. So I just want to understand, is there any possibility like me to join as a part-time or something during weekends and public holidays? I will have a time from 9 to 6. Apart from that, I'll be free. I mean to say like from morning 9 to 6. And you all know like after the COVID, so only like 1 or 2 days we will be going to the office, and I'll be able to deliver my things a little quickly, and I'll be having the free time. So even if I learn some new technology, then it is getting shaded out after like 6 months or 1 year. Then again, I was forcefully like be in a place to learn a new thing. And the surprising thing, age factor, right? The new generation kids, Gen Z kids, they will be able to deliver more faster than me with the help of like AI tools and other things. Okay, by comparing them, the more and more experience if I acquire alone in IT, I don't be able to like survive my journey in IT. So I thought of like starting something new, which is like though it's like everyday challenging day, a challenging kind of a job to handle the clients and other things. But that is the truth, right? That is the reality. In IT, we will not be able to interact with the end user. But here in this profession, right, we will be able to meet so many persons like who wants to buy a land or a house, all these things. I just want to understand, is there any potential for for person Kishore, like me? yeah. So my background, I was in IT for 20 years. So I will reach out to you in a separate one-on-one discussion. Okay. Sure, sir. And you I'll can just reach out to agrarestates.com okay. and we I'll can just take this. keep my Yeah, go ahead. mobile number here. Uh, maybe Go ahead. yeah, I'll just like ping it. ठीक है. Sudhanshu, Yeah. please go ahead. Yeah, hi. So I just want to know how this RERA thing is. I mean, is it really impacting? Because I have say one. I mean, what they call it, दूध का जला छाछ फूक के पीता है. So in the NCR, I have this Patel New Town, the builder, and 2010 booking. It is 2025. Still, they have given new dates and RERA and other things. This is not working. So is it any impact on the RERA because of RERA and other things? And how is the RERA in Bangalore, Karnataka? Is it better than the Delhi, Noida? So can I answer that question? Yeah. So Sudhanshu, you can send us personally that what product you have invested with. So I will do the background check and I will let you know what is the actual status of that product, whether it makes sense to take a loss and exit out of it if it is possible. If it is not possible, then you don't have a choice, but you will be stuck. To your second question, RERA effectively I think started जो strength आई RERA में वो 2019-2020 के बाद आई है. So broadly जो current products हैं जितने भी उसमें by and large RERA से बहुत ज़्यादा positive impact आया है because आपकी जो financial discipline है वो बहुत improve हो गया है. सो पैसा साइफन ऑफ नहीं होता. मेन जो प्रॉब्लम आई है वो डेवलपर ने प्रोजेक्ट लिया, उसका पैसा निकाला, दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, दूसरे प्रोजेक्ट का तीसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, और मार्केट अगर करेक्शन हो गया, चौथा प्रोजेक्ट बिका नहीं, तो वो सारा का सारा फॉल्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. सो वो कंट्रोल हो गया है काफी हद तक. उसके बावजूद भी एक पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको दूंगा कि जिस प्रोडक्ट में भी आप बाय करते हैं उसमें ये कोशिश करिए जानने की कि उसकी जो लैंड ओनरशिप है वो डेवलपर की अपनी है और उसमें उसका अपना कैपिटल इन्फ्यूजन कितना है उस प्रोजेक्ट में. अगर डेवलपर ने पैसा अपना लगाया हुआ है तो वो कोई कारण नहीं है कि वो और सेल्फ फंडेड है अगर, तो हाईली अनलाइकली है कि वो प्रोजेक्ट उसका डिफॉल्ट करेगा वो, बिकॉज उसका अपना रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है. प्लस आपका जो कैश फ्लो है वो कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा डेवलपर्स जो नए होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैश फ्लोज ले लेते हैं. उस एग्रेसिव कैश फ्लो वाली स्कीम में आप मत जाइए.
टिपिकली 30-35% स्टार्टिंग में होना चाहिए, 30-35% आपका पैसा ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर होना चाहिए, और 30%-35% तो टिपिकली ये रेशो होना चाहिए आइडली। नॉर्मली डेवलपर स्ट्रक्चर के टाइम पे ही आपसे 80-90% पेमेंट ले लेता है, उस प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट होने के चांसेस हाईली लाइकली होते हैं। तो आई थिंक वो बेसिक प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। और एनसीआर में आई थिंक महाराष्ट्र का रेरा सबसे स्ट्रांग है इस टाइम। बाकी चीजें इंप्रूव हो रही हैं आई थिंक, एंड टाइम्स टू कम और इंप्रूव होगी। सो रेरा को बेंचमार्क बनाइए, बट उसके बावजूद भी स्ट्रिक्ट पीस ऑफ एडवाइस है मेरी कि कंसल्टेंट से डील करिए, सेलर से डील, सेल्समैन से डील मत करिए। Thank you. Thank you. Over to Soumya Kumar. Soumya. Please ask your question. म्यूट है शायद उनका। Your phone is mute. I think Tulika, you can ask. Okay, so my question was kind of similar question which Mr. Sudhanshu have asked. Just wanted to highlight you one case which happened in Delhi NCR, that is in Mahira project, if anyone has known about it. So there is a Mahira project which should be handover to buyers in 2022, but even the construction haven't started yet, and the the investment of many buyers is stuck. Even bank has also, so they are keep on giving interest to the bank, and all the money is stuck. What should do in this kind of situation? Shall the buyer only buy ready to move in property, and they should not, invest because everyone wants to purchase the property in the lesser cost, so that, so what should buyer do in these kinds of case? What should our advise, especially in Delhi NCR, these kinds of projects are there? So I think you are stuck. So बहुत ज़्यादा आपके पास options है नहीं, because so money, that is the money gone down the drain, but eventually जो भी होगा सो समय के साथ होगा। बट अपनी आगे की लाइफ को उसको सोच के डिस्टर्ब मत करिए, जो लाइफ है उसको एंजॉय करिए, जो नुकसान हो गया कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। डेफिनेटली इट्स अ सॉर ग्रेप, तो उसका कोई ज़्यादा इलाज है नहीं। बट आई थिंक मैं जो सबको एडवाइस करूंगा कि प्रमोटर का एक बैकग्राउंड चेक जरूर करिए। सेलिंग समथिंग, डिजाइनिंग समथिंग इज वन थिंग, एंड डिलीवरिंग द सेम प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। तो डेवलपर का मतलब सेल्समैन नहीं है, डेवलपर का मतलब ही हैज टू कंस्ट्रक्ट। In spite of such a vast experience dealing with so many developers, probably we also didn't have that confidence कि we will be able to deliver such a, आसान नहीं होता। In spite of the best efforts of the, so lot of developers अगर 5 साल की कमिटमेंट करते हैं, 6.5 साल में डिलीवर करते हैं। पर्सनली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बायर उनके साथ मॉबिंग करता है, बट सच्चाई ये होती है कि उन्होंने कोई पैसा साइफन ऑफ नहीं किया होता, कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में 2-2 साल तक तो उनके नक्शे पास नहीं होके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टकअप हो जाती हैं। तो ऐसे डेवलपर्स के साथ मॉबिंग मत करिए। अगर उसकी इंटेंट ठीक है, काम को डिलीवर करना चाह रहा है, एंड अगर बिजनेस में उसको ड्यू टू सम रीजन प्रोजेक्ट लॉस हो गया और कमिटमेंट है उसकी और वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट द डेवलपर टू मेक श्योर, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलती है तो वैल्यू बन जाती है उसकी। झगड़ा करके प्रॉपर्टी, जो पैसा दिया वो भी गया और प्रॉपर्टी भी गई आपकी। वेरी गुड पॉइंट नितिन जी। एक्चुअली कई बारी डेवलपर की इंटेग्रिटी को देखना चाहिए, बट मजाक में बोल रहा हूँ कि कंसल्टेंट से डील करिए, सेल्समैन से मत डील करिए। Acha, on my second question, that I am managing property just remotely. Tulika, just one second. Soumya Kumar, are you ready? Yes, I'm ready here, sir. Yeah, please go ahead. Good afternoon, everyone. Thank you so much for giving this opportunity, and it is really happy to see all the three generations together. And keeping it quick, I have recently started working as an individual. So I'm based out of Bangalore. And I think Mr. Manoj Agarwal ji, I've met you in one of the events, if I'm not wrong. And okay, keeping it quick with the question, see, I in the Bangalore market,
what do you think that who are the targeted clients for us? And if apart from that, any other way, this question is for Mr. Rishabh Jain. What is the way to target the market our properties or our owners property apart from this 99 acres or this magic bricks, because now the AI tools has been really utilizing in all the industries. Any way for us to market it, because I am personally struggling to have the right candidate for my properties. Right. Thank you, Soumya, for the question. As far as I could understand, you want to know कि resale का properties angle, so how you can reach the right people, be it a seller or a buyer. Yes. Apart from 99 acres, Magic Bricks, all these online portals. Correct. So I think आजकल a lot of tech is also entering real estate, जो पहले नहीं था. 99 acres, Magic Bricks, तो बहुत basic level का tech है, I would say, in real estate. New platforms are coming up where people put their listings. Then I think another way is if you position yourself individually or as a brand, people will directly come to you. As Papa has mentioned a couple of times, ki deal with a consultant, not a salesman. So if you can somehow position and leverage today's social media, the power of social media and online presence, so I think people can directly come to you and you don't have to necessarily look out for them. I think that's my 2 cents on it. Can I ask, Soumya, you are talking as a channel partner or as a broker, or you want to sell your own property? So if I just no, so I'm talking as a broker. So basically, I was working for different companies before, and it's just been like 4 months. I quit everything and started working as an individual. So very slowly, my network has been growing, and where I'm like in the today's state, yeah, I'm able to get the good inventories from my clients, old clients, or a reference and all that. So my the marketing to the buyers has been little slow. Is that was the main concern that I had. तो मैं आपको इसमें 3 एडवाइस मैं आपको करूंगा. Please, So sir. advice number 1 is that when you are looking at selling a property, generally पुरानी societies में buyer local community में से ही आता है. Okay. So you can target the local RWA groups and all these things. You can try and market those things. That is one way of scouting a buyer. दूसरा, जो लोकल इफ द मैंडेटेड काम करने की आप कोशिश करिए, सो सेलर्स मैंडेट आपके पास होना चाहिए. तो लोकल जो ब्रोकर एक्टिव है, सपोज यू आर नॉट एक्टिव इन दैट ब्रोकर एंड यू डोंट हैव दिस रिसोर्स, सो लोकल चैनल के साथ कनेक्ट करिए. ट्राई एंड फिगर आउट अ वे वेयर यू कैन इंक्रीज योर फुटप्रिंट दैट वे. आप हर जगह दोनों बायर और सेलर को नहीं एंटरटेन कर पाएंगे एज अ सिंगल पर्सन. You will end up जो क्लाइंट को भी आप नाराज करेंगे अपने, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. एंड एज मिस्टर अग्रवाल टोल्ड के वो ब्रोकर उनको इतना कंफ्यूज कर देंगे. सो इफ चूज द राइट पार्टनर्स, आई वुड से ट्रेड पार्टनर्स वेयर दे कैन हेल्प यू. और तीसरा, जैसा ऋषभ ने बोला है कि अगर आप अपनी एज अ कंसल्टेंट इमेज क्रिएट कर पाएंगे तो लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कैन कम. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was really informative, and thank you everyone for this. Thank you, Soumya. And you can reach Thank out you, to me Soumya, and later also, Soumya. best of luck, Soumya. Thank you We'll so allow- much for everyone. We will have one more last question. If nobody has, then Tulika, you can go ahead. Tulika, please go ahead. Last question. Sir, I had just a generic question, very easy question. I'm working remotely. I'm a property manager. So obviously don't know the locations in real, but having an idea online and the maps and through Google. So how can interact customers so that they can build more trust, like the people, like they met people and having trust, and what is the mantra? Closing more deals and getting trust. तुलिका, मंत्रा कुछ नहीं है. मंत्रा बड़ा सिंपल है.
अगर सपोज आप बेंगलोर में रहते हैं और आप दिल्ली में प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली एक बारी विजिट जरूर करना चाहिए टू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. नाउ लॉट ऑफ ऑनलाइन टूल्स आर अवेलेबल. अगर आपने खुद देखा हुआ होगा तो आपको एक्सप्लेन करना इजी होगा. यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस इन अ मोर प्रोफेशनल वे. अगर आप बेंगलोर में रह के दिल्ली को सिर्फ नक्शे पे बेचेंगे तो फिर आप जस्टिस नहीं करेंगे कस्टमर के साथ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इज अ वेरी लोकलाइज सब्जेक्ट. It is better to be a king of some place rather than a jack of every place. So अगर बेंगलोर काम कर रहे हैं, बेंगलोर के अंदर बी अ लोकल एक्सपर्ट. नो हम देखिए इवेंचुअली कोई भी बिजनेस आप चाहे आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं चाहे 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको प्रोफेशनल हैप्पीनेस नहीं मिल रही तो वर्थ इट नहीं है वो. So most important is that you should be professionally very happy what you are doing. You should be respected within your community of the people you are working and associated with. Build relationships. Farming करिए, hunting मत करिए. Farming करेंगे, generation आपको आज एक काम मिलेगा, उसी क्लाइंट से आपको 2 साल 5 साल के बाद दोबारा काम मिलेगा, बट उसके साथ वो 5 साल रेगुलर कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा आपको. So with my experience of 30-35 years, I have learned that कि 10-10 साल के बाद लोगों के फोन आते हैं जी हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमारे फादर ने खरीदी थी, हमारे अंकल ने खरीदी थी, उन्होंने रेफर किया कि कहीं जाने की. दैट इज द बिगेस्ट अर्निंग फॉर मी. इसलिए आपने अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया. इसलिए मैंने अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया. और जो पापा ने बोला कि गलत काम चोरी करी नहीं, क्योंकि चोरी करी नहीं तो फोन ना उठाने वाली प्रॉब्लम नहीं है हमारी. ओवर टू यू पूजा. Yes. So I'm sorry we ran a bit over time, but I hope it was an insightful session for all of you. A big thank you to our speakers for guiding us through this transformative journey. As a token of appreciation, we would love to plant a tree in your names, Nitinji, Rishabhji, and Dharamchandji. If anyone has any other questions, they can contact us in the details provided in the chat. Our LinkedIn profiles are also mentioned there, so please make sure to connect with us. Before we sign off, let's take a quick picture. So everyone, if they could just smile. So, okay, Ayushi, have you taken it? Yeah, Okay. it's done. So, yeah. Thank you once again for being with us today. Have a wonderful day ahead. Thank you, Manoj, for organizing this. I hope that it is done justice to the people who have joined. And anybody and everybody are free to connect with us for any requirement. Anybody who wants to become a channel partner or a broker, I'm always available to give the right advice. For Delhi NCR, anybody can connect with us. We'll be more than happy to help. I would like to end with a very old quote of mine. आप आए हमारी महफिल में, कभी हम महफिल को देखते हैं, कभी आपको. So with this, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. चलेगा सर. Thank you so much, Manoj ji. Thank you everyone. Thank you, Pooja.